actually need. So for the same, let me go back to 1982, wherein Microsoft had first made their spreadsheet program called Multiplan. So Excel was firstly launched as with the name Multiplan in 1982, and it is a spreadsheet program, by the way. I'll let you know what is a spreadsheet program. Just a second. Just okay. Sure. So let us start with what is a spreadsheet program. A spreadsheet was actually used for easing calculations. Just a second. Two people have raised their hands. Is there any issue with the audio or something? Uh, You Karthik, go ahead. There yes, is no you Yes, issue. ma'am. Okay. you Okay. Okay. continue. Yeah, and if possible, Gaurav, could you please disable the chat? That will be better then. Whenever someone wants to ask a question or something, I'll have a question answer round also. So if someone has a doubt or something, we'll definitely consider that also. But after around 1 hour, 1.5 hours, I'll take a session. I'll continue with 1.5 hour session, and then for half an hour or something, we'll definitely go with the question answers. That's fine. Okay. Yeah. So let me start with the spreadsheet program. What's a spreadsheet? A spreadsheet is a collection of various points, various places where you can edit data, add data, you can call data, and which is also used for visualization, data storage, and all. So it was used for easing calculations and also for reducing repetitive tasks which were like unnecessary use of human mind over there. So to ease calculation and help us for visualizing data as well as analyzing data, we use a spreadsheet program. Okay, so let's go with the history. 1987, it was the first time when Excel 2 was launched for Apple's Macintosh. So Microsoft had launched Excel for Apple's Macintosh computer. Later, in around 1995 or something, I suppose, it was for Windows. So for Windows, it was in 1995, and then there were multiple versions of that: Excel 95, Excel 97, Excel 2000, Excel 2002, Excel 2003, and Excel 2003 was a revolution wherein they had added a lot of computing power to Excel, Microsoft Excel, because of which it became one of the most powerful and most commonly used software in the corporates as well as for many people who wanted to do some visualization things for research purposes as well. So after 2003, there came a version of 2007, a 2010 version, 2013, 16, and the latest one is the 2019 version. Okay. Uh, so it is highly recommended, though even I am not using 2019, I am going to use 2016, Microsoft Office 2016, but it is highly recommended for anyone whoever wants to use Excel, the software Excel, to its maximum potential. He needs to install Excel 2019. Anything above Excel 2003 will definitely work, but to add on to your computational power, a better version is always required. Okay, so that's what the history of Excel was. Um, there were Karthik, multiple additions. Karthik, can you just repeat it in Hindi too? Oh yes, sorry. So जैसे कि मैं बता रहा था, एक्सेल ये सॉफ्टवेयर जो है वो सबसे पहले 1982 में बना था। एंड एक्सेल का पहला नाम जो था, एक्सेल को माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेल के नाम से नहीं बेचा था, एक्सेल को मल्टी प्लान के नाम से बेचा था। ओके, फिर उसके बाद 1987 में माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल के कंप्यूटर के लिए एक्सेल बनाया था, उसका नाम एक्सेल 2 था। फिर उसके बाद उसमें अलग अलग फैसिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज उसकी अपग्रेड की गई, एंड देयर वर न्यू वर्जन्स, नए नए वर्जन्स निकालते गए।
जिसमें एक्सेल 2 एक्सेल 3 जो थे, दीज वर बेसिकली फॉर एप्पल के कंप्यूटर्स के लिए थे ये। उसके बाद फर्स्ट जो यूजफुल एक्सेल सॉफ्टवेयर फॉर माइक्रोसॉफ्ट के लिए जो फर्स्ट सॉफ्टवेयर था वो 1995 में आया था, 1995 में आया था, दैट इज एक्सेल 95। देन केम एक्सेल 97। उसके बाद आया 2002, 2002, 7, 10, 13 और 16। उसके बाद एक 2019 भी आया है, उसमें कंप्यूटेशनल पावर जो आपकी एंड कैलकुलेशन जितने ज्यादा कर सकते हो, उसकी पावर जो एबिलिटी रहती है वो बढ़ाई गई है, हर एक वर्जन के साथ वो बढ़ाई गई है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। Just a second. Okay? Yeah. तो अभी हम इस पे डिस्कस करेंगे कि एक्सेल है क्या एग्जैक्टली, व्हाट इज एक्सेल। तो जब भी आज के ज़माने में कोई भी लैपटॉप आप खरीदोगे या फिर कोई कंप्यूटर खरीदोगे, तो वो Okay. उसमें यू आर हैविंग यस We are गौरव। going live on Facebook. Just 2 minutes. Okay. It's ओके, happening. सो शुड आई वेट? Yes, just 2 minutes. ओके ओके श्योर। Yes, continue. You can continue. तो या थैंक यू सो मच। तो पहले की स्लाइड में हमने क्या देखा, हमने एक्सेल की हिस्ट्री देखी, जहाँ पर एक्सेल वाज launched in the year of 1982, 1982 में एक्सेल वाज लॉन्च्ड। एंड एक्सेल का पहला नाम जो था उसको मल्टी प्लान बोला जाता था, एक्सेल नहीं बोलते थे उसको, मल्टी प्लान बोलते थे। फिर उसके बाद हमने पढ़ा दैट द फर्स्ट सॉफ्टवेयर विच वाज लॉन्च्ड बाय एक्सेल वाज फॉर एप्पल मैकिंटॉश। एप्पल के प्रोडक्ट के लिए था, माइक्रोसॉफ्ट के कंपनी के प्रोडक्ट के लिए नहीं था, एप्पल के प्रोडक्ट के लिए था। उसके बाद पहला माइक्रोसॉफ्ट के लिए जो माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेल यूज करना स्टार्ट किया वो 1995 से स्टार्ट कर दिया, 1995 से स्टार्ट किया। उसके बाद देयर वर मेनी वर्जन्स, हर 2 या 3 साल में कोई अपडेटेड वर्जन आता था। अभी जैसे कि आप देखो, कोई भी एक फोन यूज कर रहे हो, वो फोन आपका 3 साल के बाद इररिलेवेंट हो जाता है, देयर इज सम न्यू टेक्नोलॉजी विच कम्स, because of which there is a constant need of upgradation. Same is the case with this software Excel. हर 2 या 3 साल में आपकी कंप्यूटेशनल पावर, कैलकुलेशंस बढ़ते जाते हैं। इसके कारण आपके प्रीवियस जो वर्जन्स रहते हैं वो इतने यूजफुल नहीं रहते हैं इन द सेंस आपकी कंप्यूटेशनल पावर जो है, आपकी जो स्पीड रहती है, आजकल स्पीड का जमाना है, तो स्पीड जो रहती है वो आपको 2003, 2007 एंड ऑल में इतनी नहीं मिल पाएगी। डेफिनेटली आप कैलकुलेशन, ह्यूमन माइंड
से फास्ट कर पाओगे, बट आपकी जो स्पीड बढ़ानी चाहिए आपको, वो बढ़ेगी नहीं, जो आपको 2019 में मिलेगी। तो 2016 इज ऑल्सो मोर और लेस द सेम, विद सर्टन फंक्शंस मोर आप 2019 में चले जाओगे। Okay, so let me tell you what is Excel now. Let's go on to the next slide. It is the spreadsheet program of Microsoft Office. अभी आपने पहले के सेशंस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ा था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता है, और ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स है अलग अलग नेसेसिटीज के लिए। तो स्प्रेडशीट की जो नेसेसिटी है वो एक्सेल फुलफिल करता है। ओके, द नेसेसिटी ऑफ अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम इज फुलफिल्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ओके, उसमें कैपेबिलिटी क्या है? सबसे पहले आप कैलकुलेशंस कर सकते हो, टेबल्स बना सकते हो, उसमें डेटा फिल इन कर सकते हो। वो डेटा टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, नंबर्स के फॉर्म में हो सकता है, या अल्फा न्यूमेरिक दोनों हो सकता है। अल्फाबेट भी हो सकता है, न्यूमेरिक भी हो सकता है, या अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है। ओके, एंड इसका यूज कहाँ पे है? किसी को अपना मंथली बजट बनाना है, घर के खर्चे का बजट बनाना है, या किसी को किसी के कंपनी का बजट बनाना है, किसी को बैलेंस शीट बनाना है, या किसी को कुछ एनालिसिस करना है ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, कि सेल कितना हो रहा है, उसका कौन से एरिया में कितना सेल हो रहा है, वो सब आप विद इन 2 to 3 seconds आपको पूरा डेटा इज राइट देयर एट योर फिंगर टिप्स। ओके एवरीवन, so this is one of the most widely used software in the world, and इसका एक फायदा ये है, आपको इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा पहचाना जाएगा जब आप जॉब के लिए जाओगे। if you have the skill set of Microsoft Excel, if you know Microsoft Excel, even if you know 5% of Microsoft Excel, it will be a huge boost to your chances to get a job, because it is one of the most widely used software, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है इंडस्ट्री में, क्योंकि इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा है। so let's go on to this thing. Will you recognize this person? Salman Khan. Okay, and if I write Salman Khan equal to Microsoft Excel, इसके अलग अलग एग्जाम्पल्स मैं बता सकता हूँ। जैसे कि सुल्तान, ये मूवी सुल्तान मूवी का फोटो है। सुल्तान मूवी में सुल्तान का एक डायलॉग था कि सुल्तान को सिर्फ एक ही आदमी हरा सकता है, वो है खुद सुल्तान। दैट इज द सेम स्टोरी विद एक्सेल। एक्सेल को एक ही बंदा हरा सकता है, वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का अगला वर्जन। देर इज नो कंपेटिटर एज ऑफ नाउ इन द मार्केट फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल का कोई कंपेटिटर नहीं है, जो भी है वो कॉपी है ऑफ एक्सेल, बट उसमें इतने कंप्यूटेशनल पावर नहीं है। तो वन ऑफ द मोस्ट सुपीरियर सॉफ्टवेयर इन द वर्ल्ड। ऑल्सो इसमें इस सॉफ्टवेयर में कैपेबिलिटी इतनी है कि वो ह्यूमन माइंड को रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है, एंड अच्छा खासा सक्सेसफुल भी होता है। इट इज गुड, वेल सक्सेसफुल इन रेप्लिकेटिंग ह्यूमन माइंड ऑल्सो, और ह्यूमन कैलकुलेशंस ऑल्सो। इसीलिए मैंने बीइंग ह्यूमन, जो सलमान खान की ब्रांड है, इसीलिए मैंने उसको इक्वेट कर दिया एक्सेल के साथ। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द मेन थिंग्स टुडे, एंड फॉर दिस आई लेट यू नो व्हाट इज द बेसिक लेआउट। अभी एक्सेल जो सॉफ्टवेयर है उसको ओपन करने के बाद मेरे क्या क्या आइकॉन्स मुझे दिखते हैं, एंड वो क्या क्या चीजें स्पेसिफाई करते हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा। ओके, सो फॉर दैट जस्ट होल्ड ऑन फॉर 2 seconds. Okay, so whenever we log on to Excel or open an Excel, so what happens is there is a screen which comes out which is like this. This is called as an Excel workbook. कोई भी आपकी नोटबुक रहेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, जनरली नोटबुक या वर्कबुक बोलते हैं। तो दिस इज अ वर्कबुक। ओके, एंड वर्कबुक में क्या रहते हैं, थोड़े पन्ने रहते हैं, कोई नोटबुक में पन्ने रहते हैं, और देर आर पेजेस और शीट्स, एंड दैट इज वाई this this grid which is there is actually called as a sheet, and sheet multiple sheets हो सकते हैं एक वर्कबुक में। वैसे ही यहाँ पर मैंने एक शीट का नाम दिया है फर्स्ट शीट। ये देखो नीचे की तरफ, आर यू एबल टू सी एवरीवन? ओके,
If I want a new sheet, what will I do? There is a plus sign over here. I will add a new sheet. Immediately there is a new sheet which is made. Okay, so first sheet is the first one. I have plugged in a plus sign over here, because of which I get a new sheet. Understanding everyone? So there can be multiple sheets. आप कितने भी sheets बना सकते हो एक एक्सेल के वर्कबुक में. ओके, अभी ये शीट 2, मुझे ये शीट 2 नाम बेकार लग रहा है यार, मैं थोड़ा नाम बदल देता हूँ. मैं डबल क्लिक कर दूंगा उस शीट पर. आई विल चेंज द नेम. माय शीट नेम विल बी सेकंड शीट. अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? उस पे एंटर कर दो. द नेम चेंजेस टू सेकंड शीट. ओके, एंड या सो दिस इज कॉल्ड एज द टैब लिस्ट और द टैब्स. आपकी जो शीट्स रहते हैं वो. ओके, तो इसमें मल्टीपल शीट्स आप बना सकते हो. Now let's come on to the second sheet only, or the first sheet for that matter. Let me delete this sheet. So what do I do? Second sheet पे मैं right click करूंगा, delete का option आ जाएगा. I will delete that sheet. Okay. Yes. So now if I start with what is this white space and why are these boxes, and it's looking like a maths का second standard का notebook, boxes checks and all आते रहते हैं. Something of that sort only, but it is a grid. This is called as a grid. इस grid में आप अलग अलग फॉर्मेट से इसको नेमिंग कर सकते हो. The name for any grid is given by different formats. Okay. Also, suppose I want to identify one particular point in that grid, so I need coordinates. For those coordinates, this grid is divided into rows and columns. Okay, so first is A, B, C, D, E. ये alphabetic naming है. These alphabetic namings are actually the namings of the columns, respective columns. So if I say I want to go to S column, I will just go on to S and click over here. आप ध्यान दीजिए, वहां पर मेरा जो कर्सर है वो नीचे की तरफ एक एरो बनाया हुआ है. It is not like this plus sign over here. It changes its symbol. Are you able to see everyone? If I click now, I am going to select the entire column. Understanding everyone? Okay. Now if I move ahead, जैसे ही मैंने कॉलम में चीज बनाई थी, इन द सेंस मैंने पूरा रो सिलेक्ट किया था, वैसे ही मैं पूरा कॉलम सिलेक्ट किया था, वैसे ही मैं रो में पूरा रो सिलेक्ट कर सकता हूँ. तो व्हाट विल आई डू? मैं फिफ्थ पे जाऊंगा. आई विल सिलेक्ट just the same way I had done it in the previous thing, and मैंने पूरा रो सिलेक्ट किया है इसमें. So what is the grid made up of? It is made up of rows and columns. समझ में आया सभी को? एंड अभी अगर मैं देखूं तो मुझे इंडिविजुअल एक रो, एक कॉलम एंड एक रो का इंटरसेक्शन देखना है. सो व्हाट विल आई डू इज, सपोज इफ आई गो फ्रॉम L and if I choose one cell which is this, okay, what is the horizontal naming for this? It is actually 6, right? It is Lth column and 6th row, right everyone? So इसीलिए ये पोजीशन को L6 बोलेंगे. Okay, and what is this position? This is an intersection of a one particular row and one particular column, which is also called as cell. समझ में आया? You can please write it down. Intersection of one row and one column is called as a cell. तो ये एक पर्टिकुलर कॉलम हो गया एंड ये एक पर्टिकुलर रो हो गया. वो जहां पर मिलते हैं उसको हम सेल बोलेंगे. ठीक है? एंड नाउ इफ आई से, इफ आई वांट टू कॉल दिस सेल, ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सेल? इट इज एक्चुअली Lth column, 5th row. Correct? That is why the name of this cell is located over here. Check this thing out. It is called as L5 and the naming is always going to be alphabet first and number second. Easily it is L5 and not 5L. Okay. So this is how we go on with what is a cell, what is a row, and what is a column. Okay. This place जहां पर आपका सेल का नाम बताया जाता है उसको हम बोलते हैं नेम स्पेस.
the name of the cell is stored to you in that namespace. It is also called as the name box. Whatever you say, the nomenclature is different. Namespace, कोई books में name space बोलते हैं, कोई books में name box बोलते हैं. Okay. Now, if I want to go, firstly, we'll discuss about how many rows are there in all. If we start counting 1 2 3 4 5 6, अभी मैं सिर्फ लोअर एरो दबा के रखा हूँ. If I go down, it is going till 100. It has crossed 100. It will cross 200. It will cross 300, 500, 1000, 10,000, 1 lakh. It will also cross 10 lakh. ओके. अब वो 10 लाख तक जाने के लिए अगर मैं मेरा नीचे का बटन दबाते रहूं, लोअर नेविगेशन की अगर मैं दबाते बैठूं, तो मतलब जिंदगी लग जाएगी यार. मैं अभी भी 400 पे ही पहुंचा हूं. So for that, to ease that movement of yours, there is a shortcut over here, which is आप control दबाओ and you go to the last, you go to the lower thing, you press the lower navigation key. Control दबा के अगर lower navigation key दबाई, तो you go to the end of the sheet, and the end of the sheet is at 10,48,576. ऑलमोस्ट 10.5 लाख रोज आ सकते हैं आपके. 10,48,576 आपके रोज होते हैं इसमें. अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? बिकॉज ऑफ विच आप इमेंस अमाउंट ऑफ डेटा डाल सकते हो. मैं तो क्या ज्यादा से ज्यादा 10, 20, 50, 100, 500 से ज्यादा मैंने इतना यूज नहीं किया है. बट जिसको रियल टाइम डेटा चाहिए रहेगा या कोई फाइनेंशियल एनालिसिस करना रहेगा, इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है इसका, फाइनेंस में बहुत ज्यादा यूज होता है इसका. तो इन दैट केस आपका डेली डेटा ही जो रहेगा वो 1 लाख या 5 लाख में होने वाला है. 5 लाख रोज में हो जाएगा वो. एंड बिकॉज ऑफ विच आपको एवरी टाइम आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि 10 लाख के बाद यार मेरा सॉफ्टवेयर ही नहीं चल रहा है. आई वॉन्ट मोर 1000, मोर 20 lakhs, I want more 50 lakhs or something of that sort. उसके लिए I will go on to an upgraded version. Understanding? So this is what is called as fast moving. आप control दबा लो. If I want to go to the top one also, I will press the top navigation key or the upper navigation key. Control दबा के upper navigation, I go on to the top row. Okay. Same thing. Control दबा के right navigation key, I will reach to the right end of the sheet, which is having a column name XFD. Understanding everyone? The last column is always XFD. ये ज्यादा पूछा नहीं जाएगा कहीं पर भी, बट आपके नॉलेज के लिए है. किसी को आपको एक्सप्लेन करना हो या समथिंग, तो इट विल बी इजी फॉर यू. ओके. अब मुझे वापस XFD से ए कॉलम में जाना है. व्हाट विल आई डू? आई विल प्रेस अ कंट्रोल, आई विल गो लेफ्ट. दिस इज फॉर मूवमेंट. एवरीवन अंडरस्टैंडिंग? दिस इज व्हाट? दिस फॉर मूवमेंट. And if we go ahead, which is just a second, I can also and always remember this thing. If I click on any cell, it will have a green box. One. Second, if I hold on to that green box and drag it down, I will always get a grayish box. What is that? This is called as selection. Okay. I am this cell is called as consideration cell. I am considering over here, and when I am selecting it, I am double clicking it and I am dragging it down, or I am dragging it to any side. तो कोई भी तरफ मैं drag करूंगा उसे, तो it is called as selection. So what am I doing? I have selected around 15. I have selected around 15 cells. Understanding everyone? Okay. So what is done? The tab list is done. The namespace is done. Now comes to a very important thing, जो maximum people use करते हैं. Just a second. Okay. Hello Gaurav. Yeah. Is there annotation over here? Like, where's the annotation key? No.
Okay, you don't have the annotation key over here. Yeah. Okay, fair enough. No problem. No problem. Thank you. So now if we go to this box over here, this having home and insert, a page layout, formulae, data, review, everything. And this, if I go to onto insert, it's changing something over here. It's changing something, right? पेज लेआउट में भी कुछ नया चीज आ रहा है, फॉर्मूले में भी नया चीज आ रहा है, रिव्यू में भी नया चीज आ रहा है. व्हाट इज दिस? दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज द रिबन. इसे कहते हैं हम रिबन. इस रिबन के अंदर लाइक होम हो गया, इंसर्ट हो गया, पेज लेआउट हो गया, फॉर्मूला हो गया, सब अगर मैंने कंसिडर किया तो इस रिबन के अंदर ही अराउंड 300 फॉर्मूले या 300 एप्लीकेशंस पड़े हैं. ओके, there are 300 plus applications in the ribbon itself. Understanding everyone? Now if we go on to the ribbon, what happens is first mera, what do we say? Okay, I'll let you know what is the application of a ribbon also. Okay, so first if I am extending a, मेरा जो कॉलम था, मैंने कॉलम के एंड पे गया, मैं कॉलम के एंड पे गया एंड उस पर एक्सटेंड कर दिया, उसको क्लिक करके उसको एक्सटेंड कर दिया. तो आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू इन दिस थिंग. मैं प्ले कर सकता हूँ इसके साथ. तो आई कैन एडजस्ट द विड्थ एंड ऑल. नाउ इफ आई स्टार्ट टू राइट अ सेंटेंस ओवर हियर, ओके, इफ आई स्टार्ट टू राइट अ सेंटेंस, टुडे इज an extremely rainy day, full stop, but we will still go on. ठीक है, मैंने ये टाइप कर लिया. What did I do? मैं यहाँ पर मैंने डबल क्लिक कर दिया and I started typing onto that cell. Understanding? The other way to do the same thing is if I double click it, one second I start directly typing it. Today I do something. Okay, so that is also another way. Or if I select a cell and press F2, मैंने F2 की बटन अगर दबा दी तो भी मैं अंदर एडिट कर सकता हूँ. समझ में आया सभी को? तो ये तीन तरीके हैं. एक सेल सिलेक्ट करो, सेल में डायरेक्टली लिखना स्टार्ट कर दो. दूसरा सेल सिलेक्ट करो, उसमें डबल क्लिक करके लिखना स्टार्ट कर दो. तीसरा सेल सिलेक्ट करो, F2 दबा के एंटर करना स्टार्ट कर दो. ओके, एवरीवन अंडरस्टूड दिस पार्ट? ओके, फेयर इनफ. व्हाट हैपेंस इज, अरे यार ये मेरा सेंटेंस तो बहुत बड़ा हो गया, बट ये मेरा सेल के तो अंदर नहीं आ रहा है, और समथिंग इट हैपेंस लाइक दैट. एक्चुअली इट इज नॉट दैट थिंग. आपको सिर्फ विजुअली दिखाने के लिए वो ऐसा है, बट दिस डेटा इज स्टोर्ड इन दैट सेल ओनली. A2 सेल में ही ये डेटा स्टोर्ड रहेगा. बट फिर भी देर इज समटाइम्स, इट समटाइम्स हैपेंस, यार मुझे थोड़ा सा ना अनकंफर्टेबल फील हो रहा है. आई एक्चुअली वांट टू व्यू द एंटायर स्टेटमेंट और द एंटायर सेंटेंस मे बी इन वन लाइन एंड इनसाइड वन सेल ओनली. ये ऐसा BCD के पास वगैरह वगैरह मुझे नहीं चाहिए है. व्हाट विल आई डू? आई विल जस्ट प्रेस द रैप टेक्स्ट ऑप्शन जो होम में है. ओके, रैप टेक्स्ट अगर मैंने प्रेस कर दिया तो ये पूरा डेटा एक सेल के अंदर आ गया. अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? एंड फिर ऐसा रहेगा कि यार मेरा ये डेटा तो नीचे है, मुझे थोड़ा सा ऊपर चाहिए है. तो देयर इज एन ऑप्शन ऑफ अलाइनमेंट ओवर हियर. मैं अप अलाइन कर सकता हूँ, सेंटर अलाइन कर सकता हूँ, या लोअर अलाइन कर सकता हूँ. ऑल्सो मैं उसको राइट अलाइन कर सकता हूँ, सेंटर अलाइन कर सकता हूँ, एंड लोअर एंड लेफ्ट अलाइन भी कर सकता हूँ. अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? So these are the facilities or the capabilities which are provided in your ribbon. So I just gave an example of wrap text जो ribbon में रहने वाला है. Also अगर मैं यहाँ पर मुझे D और E और F, ये तीन रोज, तीन कॉलम्स जो है, जो सेकेंड रो में है, D2, E2 and F2, these are the three cells. I want to merge them. I can definitely do that. It is merge and center. Okay, so these are the capabilities which are there in the ribbons. If we go now, let us move on to one important thing जो बहुत सारे लोगों को यूज होने वाला है. Suppose I start to write one. Okay, what do I do? One को लिखकर मैंने छोड़ दिया. Okay, now I come on to that cell again.
इसके बाद मुझे ये देखो, मेरा सिंबल क्या है, प्लस साइन, ये हॉस्पिटल जैसा साइन दिख रहा है ये, करेक्ट। क्रॉस साइन जो है प्लस वाला, इट्स अ हॉस्पिटल सिंबल, जस्ट लाइक अ हॉस्पिटल। बट इफ आई कम ऑन टू द एंड, द राइट लोअर कॉर्नर, जैसे मैं राइट लोअर कॉर्नर में आता हूँ मेरा सिंबल बदल जाता है, राइट। ये सिंबल पे मैं क्लिक करूंगा, लेफ्ट क्लिक करूंगा, एंड नीचे अगर मैंने ड्रैग किया तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, वो बंदा ऑटोमेटिकली, एक्सेल इतना स्मार्ट है, ऑटोमेटिकली पूरा चीज कॉपी कर सकता है। ओके, सेम थिंग अगर मैंने 1 के नीचे एंटर किया तो आई गो टू अ लोअर सेल, अ सेल लोअर देन दैट इन द सेम कॉलम। ये प्रीसेट सेटिंग है। ओके, इसके बाद अगर मैंने 2 एंटर किया, ओके, एंड इन दोनों को साइमल्टेनियसली सिलेक्ट किया, दोनों को एक साथ सिलेक्ट किया, वापस राइट लोअर कॉलम में गया एंड नीचे सिलेक्ट कर दिया, hey what happened, why I'm not getting 1 or 2, 1 2 1 2 1 2 1 2? एक्सेल इज दैट स्मार्ट कि 1 2 लिखा तो उसके नीचे अगर मैंने ड्रैग किया तो 3 4 5 6 ही आने वाला है। अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? लेट्स चेक एक्सेल स्मार्टनेस। ओके, इफ आई राइट मंडे, मंडे का शॉर्ट फॉर्म जनरली क्या रहता है, मन, राइट। मन अगर मैंने लिखा एंड मन के बाद भी इफ आई डू द सेम थिंग, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, वो ही लूप में जाता रहेगा। दैट इज द सेम थिंग विथ कोई भी मंथ, आप जनवरी लिख लो या फिर फेब्रुअरी लिख लो, फेब। अगर तुमने फेब लिखा, फेब के बाद अगर मैंने इसको डायरेक्टली नीचे खींचा तो इट विल राइट फेब के बाद मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, इट्स द सेम थिंग। सो दीज आर द, हमें ये चीजें पता है कि ये प्रीसेट है कि फेब के नीचे क्या आने वाला है, इट इज मार्च। बट ये 2003 के बाद, आई सपोज आफ्टर 2003 these settings were added on to your capabilities, because of which आपका calculation और ease होते गया। okay, and yes, if I select the entire thing and if I press delete or do a right click and press delete over here, and if I just shift cells to the left, everything gets deleted. Understanding everyone? Similarly I can do this, I can press shift और नीचे, मैं नीचे जाते जाऊंगा। अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? इसके बाद अगर मैंने डिलीट कर दिया, माय एंटायर डेटा गेट्स डिलीटेड। अरे यार ये तो गलत हो गया, व्हाट डिड आई डू, ये तो गलती कर दी मैंने, व्हाट शुड आई डू, आई विल प्रेस अ कंट्रोल जेड, मेरा डेटा वापस आ गया। अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? सो दीज आर द एक्चुअल फैसिलिटीज व्हिच आर प्रोवाइडेड। नाउ साइमल्टेनियसली इफ आई वांट, ये क्या है, व्हाट डू वी से, दिस इज अ डेटा ऑफ अराउंड 20 to 25 वर्ड्स, 25 डेटा पॉइंट्स, एलिमेंट्स, करेक्ट। डेटा पॉइंट्स अगर मेरे 25 रहेंगे तो मैं इजीली उसको व्हाट डू वी से, शिफ्ट प्रेस करके डाउन 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 करूंगा तो आ जाएगा। बट यही चीज अगर मैंने सपोज 1 के बाद 2 अगर ये एंटर कर लिया, दोनों को सिलेक्ट कर लिया, एंड इफ आई ड्रैग इट डाउन टू मे बी 200 और 500 और समथिंग, ओके, चलो, तो 989 दैट्स द लास्ट थिंग। इसको सिलेक्ट कैसे करूंगा अभी, फास्टर सिलेक्ट करने के लिए मैं क्या करता था, मतलब सिलेक्ट करने के लिए मैं क्या करता था, स्पेस दबाता था, स्पेस बार दबाता था, सॉरी शिफ्ट दबाता था, एंड नीचे 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 करता था। इसके लिए भी वापस जिंदगी भर लग जाएंगी। शिफ्ट के साथ साइमल्टेनियसली कंट्रोल दबाओ एंड लोअर बटन दबा दो, यू गेट टू द एंड पॉइंट डायरेक्टली। अंडरस्टैंडिंग? सो ऑलवेज कंट्रोल इज टू रीच योर एंड पॉइंट एंड शिफ्ट इज फॉर सिलेक्शन। प्लीज नोट दिस थिंग डाउन, ओके। So let's conclude on to these many parts. Okay, sorry, one more thing which is left. Okay, अभी ये मेरा 1 से लेकर मैंने सिलेक्ट किया 989 तक गया है, 1 to 989। अंडरस्टैंडिंग? इफ समवन आस्क्स यू इसका सम कितना है, मतलब इसकी टोटल कितनी हुई, आपको तो जिंदगी भर लग जाएगी कैलकुलेशन के लिए। एक्सेल इज मोर स्मार्टर। एक्सेल ने न्नीचे देखो यहाँ पर रेडी लिखा है, देयर इज सम सिंबल ओवर हियर, इसी के हॉरिजॉन्टल में चले जाओ, ये डेटा का एवरेज क्या है, टोटल काउंट कितना है, न्यूमेरिकल काउंट क्या है, मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है, एंड टोटल मतलब सम कितना है।
ये सब डेटा आपको अवेलेबल रहता है. दिस प्लेस or this location where entire data of this numerical data point, these numerical data points is available, is called as space bar. Okay, sorry, status bar, not space bar, it's called as a status bar. And status bar में जनरली ऐसा रहेगा कि बहुत जैसे एलिमेंट्स मैंने एवरेज लिया है, काउंट लिया है, न्यूमेरिकल काउंट लिया है, ये एलिमेंट्स नहीं रहेंगे. दीज एलिमेंट्स मे नॉट बी देयर. डोंट वरी, press a right click over here, click onto whatever you want and just unclick on whatever you don't want. If I don't want an average, I will untick average. मेरा average भूल हो जाएगा और चला जाएगा. Okay, now if I press a delete over here, everything goes. If I click over here and select all this, again I will get a sum, maximum, minimum, numerical count and count. ये जो रहेगा ये हमेशा आपके डेटा पॉइंट के हिसाब से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहेगा. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ बिट मोर कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी. थोड़ा कॉम्प्लेक्स टर्म्स में जाते हैं. जस्ट अ सेकेंड. ओके, ओके, तो या तो हमने क्या पढ़ा? नेम स्पेस पढ़ा, स्टेटस बार पढ़ा, रिबन पढ़ा, स्प्रेडशीट इज दैट वाइट शीट जिसमें हम डेटा पूरा इनपुट करेंगे, एंड द टैबलेट. ओके, नेक्स्ट इफ आई गो, इट इज फॉर्मूला. अरे यार इतना आपने मुझे बताया स्प्रेडशीट क्या मतलब क्या चीज किसके लिए यूज होती है एंड अभी इसको यूज करेंगे कैसे, वी लर्न दैट नाउ. ओके, सो बेसिक इज कैलकुलेशन. अगर मुझे दिखाना रहेगा तो व्हाट विल आई डू? आई विल यूज मे बी मैथमेटिकल ऑपरेशंस, which is what like arithmetic operations, which is plus, minus, multiply, divide, right? So what will I do is first teach you what is how do we do that, calculation कैसे करते हैं उन चीजों का. just okay, I'll move on to the Excel sheet again. Yeah, so मैंने यहाँ पे एक प्री एग्जिस्टिंग व्हाट डू वी से कैलकुलेटर सॉर्ट ऑफ बनाया हुआ था. So we'll make a calculator again. Today we'll make a calculator. What is and how do we make a calculator? Okay. So firstly मैंने ऐसे cells select कर लिए. Suppose I have taken these 9 cells. Okay. 9 cells के बाद मैंने उनको कलर कर दिया, या फिर ऐसे कलर कर सकते हैं या फिर इनको फिल कर दो. You can do it any way. Okay. इसमें कंट्रोल Z कर दिया. I have come on to the start again. तो ऐसे ही मैंने एंटर द फर्स्ट नंबर, दिस इज माय फर्स्ट नंबर, एंटर द सेकंड नंबर, दिस इज माय सेकंड नंबर. ओके, व्हाट डू आई वांट ओवर हियर? इधर मुझे मेरा आंसर चाहिए, करेक्ट, विच इज एडिशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म. अभी ये तो मैंने स्टैटिक डेटा मतलब 30 तो आपको वैल्यू दे दी है, किसी और ने अगर कोई अलग वैल्यू डाली तो कैलकुलेट करेगा? नहीं करेगा. हाउ टू डू दैट आई विल लेट यू नो नाउ. ओके, तो वो उसमें व्हाट विल आई लाइक हाउ देयर इज अ पर्टिकुलर वे, एक पर्टिकुलर तरीका है हाउ डू वी राइट अ फॉर्मूला. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल टू राइट अ फॉर्मूला इज प्रेस इक्वल टू. ऑलवेज इक्वल टू के बाद एक्सेल को समझ में आता है कि हाँ ही इज ट्राइंग टू पुट सम फॉर्मूला. अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? नाउ वी नीड टू टीच एक्सेल हाउ टू डू एडिशन. ओके, एक्सेल अंडरस्टैंड only plus sign and the 2 data points. Excel को plus sign क्या होती है वो समझ में आता है, बट उसको डेटा पॉइंट्स भी तो देने पड़ेंगे, डेटा पॉइंट्स भी तो बताने पड़ेंगे, राइट एवरीवन? तो इस केस में मैं क्या करूंगा, आई विल डू फर्स्ट, ये मेरा सेल में मेरा डेटा रहने वाला है, प्लस सेकेंड. ओके, एंड नाउ आई प्रेस एन एंटर, मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाता है. ओके, सेकेंडली अभी सब्ट्रैक्शन में भी सेम थिंग. मैं क्या करूंगा, इक्वल टू फर्स्ट माइनस सेकेंड.
-20, राइट. 30 - 50, इट विल बी -20. अगर मैंने 50 - 30 किया रहता था, इट वुड हैव बीन +20. ओके. नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन. व्हाट विल आई डू? इक्वल टू this. I am not going to write x, which is school level multiplication में हम x लिखते हैं, right, for multiplying. We are not going to write x. Otherwise, we are losing out the blue color of B2. मैंने x डाल दिया, मेरा blue color चला गया, तो उसको फिर पता नहीं रहता है कि मेरा ये 30 B2 में है डेटा. Okay. So what will I do? Instead of pressing an x, I will press a star. समझ में आया सभी को? ये एस्टेरिस्क साइन जो है वो उसको स्टार भी बोलते हैं. दैट इज द मल्टीप्लिकेशन साइन. Now what will I do? I'll go ahead normally. This is my second data point. मैं एंटर कर दूंगा, 1500 आंसर आ गया. डिविजन करना रहेगा. What will I do? Equal to first element upon second element. Understanding everybody? And if I press an enter, I get 0.6. So these are the mathematical operations which we can do. एंड बेसिक मैंने ये इसीलिए बताया था क्योंकि मैंने सिर्फ 2 ही नंबर्स लिए थे. चाहिए रियल टाइम थोड़ा काम भी करेंगे आज, बट बेसिक्स में व्हाट कैन वी डू इज वी कैन डू द प्लस साइन ओवर हियर. ओके, द प्लस साइन ओवर हियर, द माइनस साइन ओवर हियर, द मल्टीप्लिकेशन साइन ओवर हियर एंड द डिविजन साइन ओवर हियर. Understanding everyone? Okay, so these are basically the symbols or the operations which we do. These are not the formulae, but this is an operation, and operation के लिए भी we are going to use an equal to sign initially. Fine everyone? I suppose everyone is with me, right? Okay. अभी ये केवल 2 का डेटा था. ओके, एंड 2 के डेटा में भी व्हाट डिड आई डू इज, ये यहाँ पर देखो. हाँ, वन मोर थिंग. इफ आई सिलेक्ट दिस सेल नाउ, व्हाट विल आई गेट? आई विल गेट एन 80. ओके, बट यहाँ पर मेरा जो वैल्यू रहेगा, ये वैल्यू में मेरा B2 + B3 दिखाएगा. इन द सेंस वो फॉर्मूला बताएगा क्या लिखा है, मैंने फॉर्मूला क्या लिखा है वो बताएगा. लाइक यहाँ पर इफ आई राइट, like यहाँ पर in G2, if I write Karthik, okay, it will show Karthik over here. We have written 30 over here, so it is showing 30 over here. We have written 50 over here, it is showing 50. But over here, since it is a formula which we have input, it will show the formula B2 + B3. ठीक है? Now what have I done is, this is a formula which I have used, and ये formula में B2 and B3 ये 2 cells मैंने use किए हैं, बराबर. I have taken data from B2 and B3, correct. Now if I change B2, मुझे क्या है, मैं 500 रख दूं, 300 रख दूं, 350 रख देता हूँ. My numbers change automatically. Are you getting? So this is the calculation speed. I will take 368, some random number. आपका डेसिमल कैलकुलेशन, लाइक डिवीजन देखो, मल्टीप्लिकेशन देखो, सब्ट्रैक्शन एडिशन तो हो जाएगा. कोई रियली वेरी फास्ट रहेगा या समथिंग, ही विल बी एबल टू डू द कैलकुलेशन आल्सो, मल्टीप्लिकेशन आल्सो, डिवीजन भी देखो. इट इज सो फास्ट. व्हाई? बिकॉज वी हैव जस्ट यूज्ड अ फॉर्मूला जिसमें डेटा पॉइंट जो रहने वाला है वो मेरा B2 and B3 में. समझ में आया सभी को? अंडरस्टूड एवरीवन? Now suppose I write in E. If I write equal to, I just press an equal to, and now I write G, which is G2. What will you get? You will get Karthik again. Whatever data is there in that will be copied over here. Understanding? Okay. So this thing what I have done in the sense, मैंने एक सेल में कोई अलग सेल से डेटा लिखा है, डेटा फेच किया है, डेटा निकाला है, एंड दूसरे सेल में डेटा वो इनपुट किया, राइट. सेम इज द केस ओवर हियर. मैंने B2 और B3 ये दोनों सेल्स से लेकर B6 में डेटा इनपुट किया है, राइट. B6 में आई हैव इनपुट द डेटा. दिस इज कॉल्ड एज रेफरेंसिंग. इसे क्या बोलेंगे हम? रेफरेंसिंग.
मतलब मैंने रिफर किया B2 एंड B3 को टू गेट माय B6 का वैल्यू. अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? सो दिस इज कॉल्ड एज रेफरेंसिंग. ओके, so yeah, this is the referencing which I was talking about. In the further things we'll talk about this. Okay, just a second. Yeah, okay, now there is one more example which I am going to share with you. स्कूल में हमें वो टेबल लिखने को बोलते थे, 1 से 10 का टेबल्स लिखो, 1 से 20 के टेबल्स लिखो. आई एम श्योर नो वन रिमेम्बर्स द टेबल ऑफ 27 और 28 और समथिंग. डेफिनेटली नॉट इवन 13 का भी टेबल ले लो, 17 का टेबल ले लो. मेनी ऑफ यू ऑल विल नॉट नो. इट इज बट नेचुरल. बहुत कम लोगों ने एक्चुअली वो नोटबुक में लिखा था, किधर पेस्ट किया था या समथिंग. So what is the big problem? We'll make our own table. Okay, so what is it? 31 ones are 31, 31 twos are something, right? What have we done over here is I have let me start from the start over here and I'll help you out with this. Okay, so ये x x x and all जो मैंने यहाँ पर लिखा है, that is some random thing only, just वो multiplication sign दिखाने के लिए. It has no significance. Okay, let me select the 1 to 396. Mind you, मैंने टेबल का till 396 लिखा था. Okay, let me delete this. Okay, what will I do is how did we start? 1 go down, 2 go down. Yeah, I'll do one thing. इसको भी मैं delete कर देता हूँ. Okay, 1 go down, 2 go down. इसको select कर लिया and now I know मुझे last कहाँ तक जाना है, right? Previous case में I didn't know. मैं तो सिर्फ drag करते गया था, right? Now I know कि मुझे 396 तक जाना है. मैं क्या करूंगा, इसको डबल क्लिक कर दूंगा. इसको जैसे डबल क्लिक कर दिया, I will stop at 396. Just a second. I'll stop at 396. ठीक है? So it was just a double click and I got numbers till 396. Okay. Now if I take any random number, मैंने 13 लिया, suppose 13 का टेबल मुझे चाहिए है. Okay. सपोज मुझे 13 का टेबल चाहिए है. ओके, व्हाट विल वी डू? वील राइट 13 ones are 13, 13 twos are, मतलब ये 13 जिंदगी भर लिखता रहना पड़ने वाला है. Instead of that, what did I do is not even writing that thing. I'm not even writing this. Okay, what did I do? I directly fetched. मैंने ये डेटा जो E3 में जो मेरा डेटा रहने वाला है, वो मेरा B2 का ही डेटा रहने वाला है, राइट? मुझे 13 का टेबल चाहिए तो मैं 13 का टेबल लिखूंगा, बराबर? So what did I do? I pressed an equal to and I wrote B2 directly. Okay, understanding everyone? And now अगर मैंने खींचा तो you will get an error. देखो यार ये जीरो कैसे आ गया यार? That is a big problem. क्योंकि हर जगह पे तो मैंने मतलब यहाँ पे देखो, you check this thing, 1 के नीचे अगर मैं खींचता गया, इसको एक्सटेंड करता गया, I am getting 1. In the other case over here I am getting 0. Why is it like that? So the reason over here is because I have given referencing over here. ठीक है, मैंने इसको रेफरेंस किया है, रेफर किया है at this point. जैसे ही मैं E3 के एक नीचे जाऊंगा, E3 के एक नीचे मतलब E4 के सेल पे जाऊंगा, it will refer B3 का सेल, मतलब ये करंट एग्जिस्टिंग सेल के एक नीचे. यहां से एक नीचे गया तो ये रिफर भी एक नीचे वाला सेल करेगा. समझ में आ रहा है सभी को? बट अभी दिस इज कॉल्ड एज द दिस इज कॉल्ड अ रेफरेंसिंग पार्ट. एंड सपोज इफ आई वांट टू फिक्स इट, मुझे तो एक ही सेल को रिफर करने का है सब केस में, दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग. समझ में? दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग. तो वो कैसे करेंगे? आई विल प्रेस F2, मतलब मैं एडिट करूंगा ये चीज को. ये B2 पे जैसे जाऊंगा मैं, यहां पर आई विल प्रेस F4. जैसे F4 मैंने दबाया, 2 डॉलर की साइंस आ गई. देखो
B के साथ भी डॉलर की साइन नहीं एंड 2 के साथ भी डॉलर की साइन नहीं. What does that mean? A dollar sign over here in the formula will always mean that it is fixed at that point. So what am I saying over here? I am fixing bth row and tooth column or the second column. Bth row and the second column. Understanding? So if I press an enter over here, I'll get 13 again. Okay. And इसके बाद अगर मैंने नीचे नीचे खींचा, now I will get 13 everywhere. Understanding? Double click will make it till 396. Understanding everyone? 13. So what is this? What is this called as? This is absolute referencing. Okay. Now it's very easy. What is the thing? मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको? मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला, राइट? इट इज दिस इनटू दिस, करेक्ट? 13 ones are 13. So what am I doing? This formula in E3 will be equal to in I3 will be equal to E3 into G3, because of which I have put this value and I have got 13. Mind you, यहाँ पर अगर मैंने कहीं पर F4 दबा दिया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मेरा आंसर सेम ही आने वाला है इन दैट केस. ओके, क्यों? क्योंकि दैट इज नॉट एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग. जैसे मैं नीचे जाऊंगा मुझे ये 13 और ये 2 का मल्टीप्लीकेशन चाहिए है. उसके नीचे जैसे जाऊंगा मुझे ये 13 और ये 3 का रेफरेंस मतलब मल्टीप्लीकेशन चाहिए है, राइट? सो व्हाट विल आई डू इज जस्ट press the plus sign over here 2 times, which is the double click, go down again and I will get my answer. पूरा टेबल विद इन सेकेंड्स, आपका पूरा टेबल इज रेडी टिल 396. अगर मैंने इस पे 10 लाख बोला रहता था, इट वुड हैव रीच्ड टिल 10 lakhs. ओके, सो दिस इज हाउ वी मेक अ टेबल. एंड ये टेबल में आई विल टेल यू व्हाट वी हैव कवर्ड इन दिस टेबल. इस टेबल में हमने एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, जहां पर मैंने डॉलर साइन डाला था, दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग. ओके, एंड पहले वाला जो केस था जहां पर मैंने 13 लिखा एंड डायरेक्टली नीचे खींचा, बिकॉज ऑफ विच मेरा 0000 आया, दैट वाज रिलेटिव रेफरेंसिंग. ऑल्सो मल्टीप्लीकेशन साइन के साथ इक्वल टू में जब मैंने लास्ट में डाला था, वो उसमें देयर वाज रेफरेंसिंग बट विदाउट एनी डॉलर साइन, दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव रेफरेंसिंग. Understanding everyone? So what did we do is we used basic operations, in the sense मैंने दो पॉइंट्स से डेटा कलेक्ट किया, उसको प्लस किया, माइनस किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया. Also what did I do? I used absolute referencing and relative referencing. Okay, now let's move ahead. Just a second. So this is a practical implementation question. So I suppose chat box में वो Excel sheet नहीं रहेगा. But do you know the COVID cases in India? Total COVID cases कितने हैं? Exact value किसी को पता है? Well, it is very difficult to keep a track. अगर मैंने आपको बोला ठीक है, आपको 2 दिन पहले का डेटा आपको पता रहेगा कि हाँ 96,000 केसेस बढ़े थे और समथिंग, बट क्या आपको पता है कि मे बी 26 मई को टोटल कोविड केसेस इंडिया में कितने थे? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट. एंड ये मेंटेन करने के लिए, ये डेटा मेंटेन करने के लिए एक्सेल इज यूज्ड और अ स्प्रेडशीट मॉडल इज यूज्ड. And we'll do a practical implementation of the total COVID-19 cases in India, and I'll explain you tables also in the same thing. Okay. So if you go online, this data is available, but this data was available for the entire world. I had to like eliminate some parts of that data. Just a second. I had to eliminate some parts of that data, and I had to make this. This is this also looks like a table, but it is not. It is not a table, everybody. Please believe me, because this is actually called as a grid.
टेबल कैसे बनता है आई विल लेट यू नो दैट ऑल्सो। ओके, इसे हम ग्रिड बोलेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ रोज एंड कॉलम्स है, एंड टेबल के लिए केवल रो एंड कॉलम होना ही नेसेसिटी नहीं। टेबल एंड ग्रिड में फर्क मैं थोड़े समय में आपको बता दूंगा क्या होता है। ओके, तो ये जो डेटा है मेरे पास, वो डेटा 30 जनवरी से है। फर्स्ट केस जो इंडिया में आई थी वो थी 30 जनवरी को, जब 5 केसेस केरला में आई थी। द फर्स्ट स्टेट टू बी इन्फेक्टेड इन इंडिया वाज केरला। ओके, सो क्यूमुलेटिव केसेस मतलब इस दिन तक टोटल केसेस कितने हुए हैं। ओके, सो मैं अगर यहाँ पे डालूंगा तो दिस इक्वल टू दिस। ओके, सो व्हाट डज दैट मीन इज क्यूमुलेटिव केसेस ऑन 30th Jan वर 5 केसेस। क्यों? क्योंकि नए केसेस 5 थे। ठीक है, अभी यहां पर अगर मैंने डाला दिस इक्वल टू पहले के क्यूमुलेटिव केसेस, मतलब इसके ऊपर वाला कॉलम, इसके ऊपर वाला सेल, प्लस द न्यू केसेस ऑन दैट प्रेजेंट डे विच इज 31st Jan। ओके, दिस इज हाउ वी यूज क्यूमुलेटिव, मतलब टोटल केसेस टिल दैट डे। ओके, सिर्फ इतना सा एक फॉर्मूला था। ओके, ये एक फॉर्मूला मैंने एंटर कर दिया, टोटल केसेस कितने आ गए? वापस 5। क्यों? क्योंकि पहले तो 5 केसेस हो चुकी है ना, करेक्ट? तो पहले की जो 5 केसेस है, आज मतलब 31st Jan को देयर वर नो न्यू केसेस, बट पहले की जो टोटल नंबर ऑफ केसेस थी वो 5 केसेस एग्जिस्टेंट थी। अंडरस्टैंडिंग? इट्स अ स्ट्रेट आंसर। डायरेक्टली गो, डबल क्लिक कर दो, आप यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर 5 था क्योंकि यहाँ पे भी कोई केस नहीं थी, नई केस नहीं आई थी 1 फरवरी को भी, बट 2 फरवरी को एक नई केस आई, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितनी होगी? 6। एक और केस आई तो टोटल नंबर ऑफ केस कितनी हो गई? 7। इफ आई गो डाउन till 1st of March there were no new cases. Okay, there were no new cases, but on 2nd of March there were 2 new cases, cumulative rose till 9। एंड ये डेटा मैंने, ये जो पीपीटी है ये 2 दिन पहले बनाई थी, तो इसीलिए ये 2 दिन पहले तक का डेटा मेरे पास अवेलेबल रहेगा। ओके, 3 दिन पहले बनाई थी। इट इज 11 सितंबर। 11 सितंबर को 96,551 केसेस आए थे इंडिया में। दैट मीन्स ओके, नए केसेस जो थे वो 96,551 हुए। ओके, बट टोटल नंबर ऑफ केसेस वर 45,62,414 केसेस। ये केसेस हो गए, डेथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, डेथ्स इज द नेक्स्ट 2 कॉलम्स, ये सिर्फ केसेस की बात कर रहा हूँ। अभी किसी ने आपको पूछा कि 26 मई को कितना था, तो यू गो ऑन टू 26 मई। 26 मई पे जाओ, टोटल नंबर ऑफ केसेस वर सर 1,45,380। दैट विल बी योर आंसर। अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी? ओके, सेम इज द केस विद द क्यूमुलेटिव डेथ्स। डेथ के लिए भी मैं क्या करूंगा, पहली केस में डायरेक्ट कॉपी कर लूंगा, एंड क्यूमुलेटिव डेथ निकालने के लिए मैं अपर नेविगेशन की से E2 पे जाऊंगा, ऐड करूंगा उसके बाजू वाला विच इज D3। ये सेल, ये दोनों सेल को ऐड कर दिया, एंड रिलेटिव रेफरेंसिंग के कारण डायरेक्टली उसको डबल क्लिक कर दिया, तो 0,0,0,0 कब तक? जब तक पहली नई केस नहीं आती। मतलब पहली डेथ जो इंडिया में हुई थी दैट वाज ऑन 13th March 2020। 13th March को फर्स्ट डेथ, फिर एक और डेथ 14th March को, ऐसे करते 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 टोटल नंबर ऑफ डेथ्स भी आ गई आपको। तो आपको किसी ने पूछा कि 11 सितंबर को कितनी डेथ्स थी, सर इट वाज 76,271 टोटल नंबर ऑफ डेथ्स। ओके, बट द न्यू डेथ्स वर 1209 or 1209। Understanding everyone? Okay, what do we do is, मैंने वापस ये पूरा ये सिलेक्ट कर लिया एंड इसको डिलीट कर दिया। ओके, एंड सेम थिंग इज ओवर हियर, मैंने वापस इसको सिलेक्ट कर दिया एंड डिलीट कर दिया। अरे यार प्रॉब्लम हो गई अभी। न्यू केसेस पे जाऊंगा, न्यू केसेस पे पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लूंगा। हाउ डू आई डू दैट? शिफ्ट कंट्रोल एंड लोअर की, करेक्ट? शिफ्ट कंट्रोल एंड लोअर की पे, तो व्हाट हैपेंस इज
11th September तक I have selected the entire thing. Mind you, because it is gray, the cells have become gray. मतलब क्या है? I have selected them. Select किया, नीचे देखो सेम आंसर आ जाएगा आपको 45,000 45 lakhs 62,414. Maximum is how many? 96,551. देन न्यूमेरिकल काउंट कितना है? 226 दिन से कोरोना इंडिया में है. So what is this? This is actually called as data analysis. कितना हाईएस्ट है, कितना मिनिमम है, फिर कब आया था, इस दिन पे कितना था, और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. दिस इज बेसिकली डेटा एनालिसिस. आप समझ रहे हो डेटा क्या कह रहा है? ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये डेटा एक स्टोरी भी बता रहा है. So this is how you understand what the data is trying to say, which is very easily done in Excel. Okay. The last thing which I'd like to tell you is, apart from this, if I press a Control A, सब select हो जाता है. Okay. What did I do? I pressed a Control A. What happened? Everything got selected. I'll show it to you again. Control A. Understanding everyone? Okay. Now what will I do? I will go to the Home tab, जिसमें I will go to the ribbons, and in the ribbon there is a Format as Table option. समझ में आ रहा है सभी को? Format as Table पे जैसे क्लिक करूंगा, कोई डिजाइन दे दो, तो I'll generally choose this design. I will press an OK, and this is what a table looks like, and this is how a table is formed. Now let me tell you the difference between a table and a grid. टेबल में डिफरेंस क्या है? आप जैसे ही एक टेबल बनाते हो, आपके होम, इंसर्ट, पेज लेआउट के बाद एक और ये ऑप्शन खुल जाता है, विच इज कॉल्ड एज डिजाइन. टेबल का डिजाइन. अब वो डिजाइन मतलब सिर्फ आपका रंग चेंज करने वाला नहीं है, उसमें हाउ द लेआउट ऑफ द टेबल इज, दैट ऑल्सो कैन बी चेंज्ड. एग्जाम्पल, आप सिलेक्ट कर लो टोटल रो. व्हाट हैपेंस इज, जस्ट चेक, यू गेट अ टोटल का ऑप्शन नीचे हॉरिजॉन्टल में. टोटल का ऑप्शन जैसा आ गया, अब मेरे नए डेथ्स कितने हैं, मैं इस पर चला जाऊंगा, मुझे एक ड्रॉप डाउन बॉक्स आ जाएगा. व्हाट विल आई डू? आई विल टेक एन एवरेज. एवरेज नंबर ऑफ डेथ एवरी डे इज 337. ओके. आई विल गो टू मे बी सम. टोटल नंबर ऑफ डेथ्स इतने हो गए. मैक्सिमम नंबर ऑफ डेथ्स 2003 हो गए. दिस इज हाउ वी आर एक्चुअली यूजिंग अ टेबल. टेबल में टोटल का ऑप्शन आता है, ग्रिड में नहीं आता है. दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन अ टेबल एंड अ ग्रिड. अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? सेम इज द केस ओवर हियर. वापस एक ड्रॉप डाउन बॉक्स आ जाएगा. एवरेज नंबर ऑफ केसेस एवरी डे. एवरेज नंबर ऑफ केसेस एवरी डे आर 20,000 केसेस. अभी भी अरे यार 97,000 केसेस तो डेली आ रहे हैं, 20,000 एवरेज कैसे? first case first like for the first few days it was 000 also ना initially. तो इसीलिए एवरेज जो केसेस आए हैं वो 20,000 आते हैं. ऑल्सो बाकी अगर आपको स्टैटिस्टिक्स में जाना रहेगा, जो आपको 11th एंड 12th में सिखाएंगे, आपको स्टैटिस्टिक्स में जाना रहेगा, तो ये अलग अलग फंक्शंस भी यहाँ पर अवेलेबल है. अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? ओके. व्हाट विल आई डू इज I'll do a Control Z. सब डिलीट कर देता हूँ. मैं टेबल भी डिलीट कर दिया, एंड या एंड आई प्रेस अ Control Y, तो वापस अनडू करता है या रीडू करता है. ओके. नाउ दिस इज अ ग्रिड एंड आई डोंट हैव द सम ऑप्शन और द टोटल वाला हॉरिजॉन्टल रो. व्हाट विल आई डू नाउ? आई विल प्रेस एन इक्वल टू, एंड दिस इज कॉल्ड एज द अरिथमेटिक ऑपरेशंस. अरिथमेटिक ऑपरेशंस मतलब क्या? सम, प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, राइट? आई विल डू सम. जैसे मैंने इक्वल टू के बाद सम डाला, तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस आते हैं. सम, सम इफ, सम प्रोडक्ट, सम एसक्यू, समथिंग आई डोंट नो. ओके. हमें सिर्फ काम करना है सम पर. जैसे आई प्रेस सम, आई प्रेस अ टैब, माय ऑप्शंस ओपन अप. ओके. माय ऑप्शंस ओपन अप, एंड आई नीड टू सिलेक्ट विच नंबर्स आई वांट टू चूज, जिसका मुझे सम निकालना है. तो मैं सिलेक्ट करूंगा अभी नंबर्स. वापस नंबर सिलेक्शन कैसे करूंगा? ये सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन, एंटर कर दिया. आई विल गेट द सेम आंसर, 45,62,414. अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? So this is the formula.
And similarly you can do, suppose I take 1, maybe I'll take 555. This is one number, and maybe 612. This is the second number. Okay, I can do one thing. अगर ये 2 का डेटा है तो I can directly have the sum over here. I can take a horizontal this thing also. हॉरिजॉन्टली भी अगर मैंने सिलेक्ट कर लिया तो भी मुझे सम आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन सॉरी मिनिमम मैक्सिमम वगैरह आ जाए. ओके, व्हाट आई कैन डू इज इक्वल टू सम टैब एंड ये दोनों सिलेक्ट कर लूंगा, एंटर कर दूंगा, आई विल गेट द टोटल. गेटिंग? सो दीज आर द फॉर्मूला, दीज आर द अरिथमेटिक फॉर्मूला विच आर देयर. तो अगर आपको फर्दर फॉर्मूले एक्सप्लोर करने हैं, फॉर्मूले के टैब में जाओ. फॉर्मूला के टैब में देयर इज अ फाइनेंशियल फॉर्मूला, जिसको भी टैली जो टैली पे यूज करता है, मेनी ऑफ द ऑपरेशंस इन टैली कैन बी डन इन एक्सेल आल्सो. सो वो फाइनेंशियल के जो फॉर्मूले हैं, फाइनेंस के लिए जो फॉर्मूले लगते हैं, वो सब यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे. सेम इज द केस इन द लॉजिकल वन, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, नॉट गेट, इफ गेट, सब जो भी लॉजिकल प्रॉब्लम्स रहेंगे, it is done through this logical one. I will go on to text right now. Mathematical ones, यहाँ पर आपको बहुत सारे मैथमेटिकल लॉग फंक्शन अवेलेबल है, सब फंक्शंस अवेलेबल रहेंगे. many of them are there. Okay, due to paucity of time I may not be able to take many mathematical functions. statistics का more function में आपको statistics मिलेगा, जिसमें यहाँ पर आपको एवरेज का मिलेगा. ओके, फिर काउंट मिलेगा, फिर you will get a max function which is the maximization function, maximum of all the numbers. फिर min function, minimum of all numbers. Median function, median of all numbers. Understanding? And same is the case with variance and all. आपको अगर वो चाहिए रहेगा तो you can do that also. Understanding everyone? Yeah. Okay, so most of the functions which are there are available over here. You can definitely go and try them. Let me take a few if possible. Let me see. I have 18, right? Okay. Yeah, suppose I want to use an average. Okay, average, min, max. If I take these 3 numbers only, okay, so 1167, I have eliminated that sum wala formula. Then I'll take 2167, then I'll take 3167, then I'll take 3267, and then I'll take 3067. Okay, so these are some random numbers which I have chosen. Understanding? If I select all of them, what will I do now? Control Shift and right, I have selected all of them within seconds. Okay, so if I want to take maximum, minimum, sum and count, and median also if I'll take. Chalo. Okay, सिंपल फॉर्मूले, इक्वल टू दबाओ, मैक्स टाइप करो, आपको मैक्स का फंक्शन अवेलेबल रहेगा. टैब दबाया, यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट द एंटायर रो और द कॉलम और द डेटा सेट जो आपको चाहिए है. एंटर दबा दो, आपका डेटा का आंसर मिलेगा आपको मैक्सिमम. तो द मैक्सिमम इज 3267 ऑफ दीज नंबर्स. तो ये तो छोटे नंबर्स थे, करेक्ट. वो छोटे मतलब ये छोटा डेटा था. वो 226 डेज का डेटा में भी ही इज एबल, लाइक एक्सेल software is able to find maximum, minimum within fraction of seconds. Okay, same is the case with minimum. I will press a minimum over here. With minimum, if I press a tab, I will get an option to select the numbers. And Excel is इतना supportive कि it will give you the syntax. आपको क्या use करना है. Minimum के बाद if I write कार्तिक and enter कर दूंगा,
तो वो कुछ बताएगा नहीं, वो कुछ तो एरर बताएगा आपको। ओके, सो आपको वो भी पर्टिकुलर चीज फॉलो करनी है। इक्वल टू min, इफ आई प्रेस अ टैब, वो बताएगा आपको कि क्या चाहिए है मुझे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, मतलब क्या, जो डेटा पॉइंट्स है वो सबके सब चाहिए हैं। ओके, एंड आई प्रेस एन एंटर, आई गेट द मिनिमम वैल्यू। इक्वल टू सम, सेम थिंग, टैब, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, एंटर। इक्वल टू काउंट, काउंट आ गया, काउंट में भी टैब, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, सेम थिंग। अंडरस्टैंडिंग? नाउ लेट्स गो ऑन टू द मीडियन। इक्वल टू MEDIAN, मीडियन आ गया, टैब दबाओ। ओ, इक्वल टू मीडियन, ओके सॉरी, इक्वल टू मीडियन, मीडियन में टैब दबाया, 2167 इज द मीडियन। तो मीडियन एंड ऑल इज इनटू स्टैटिस्टिक्स, अगर जिसको आता रहेगा फॉर देम इट इज, तो मीडियन आ जाएगा, मोड आ जाएगा। if you want to further analyze anything, you can get percentiles or something also in the same thing. Okay, uh, let me move on to the text functions for the time being, and we will come back to maybe mathematical functions. Okay, just a second. Just a second. Okay, so with this analysis, were we able to calculate the total number of exact number of cases in India? I suppose 46,000, sorry, 46 lakh 62,414, yeah, something ऐसा कुछ तो value था, right? So that is how we do calculation. That is how we analyze using a grid. That is how we analyze using a table. Understanding, everyone? Now, if we go ahead, just check it out. Sorry, 45 lakhs 62,414. These were the cumulative number of cases. ये WHO के साइट से देखा है मैंने. Okay. द लास्ट डेट जो था उसमें 96,551 केसेस आए थे। टोटल नंबर ऑफ डेथ्स कितनी थी? 76,271, और नए केसेस जो डेथ के केसेस थे वो 1209 केसेस थे। अंडरस्टैंडिंग? so this data is actually taken from WHO health website only, and थोड़ा उसमें मतलब एडिट करके सिर्फ इंडिया का पार्ट लिया था, and we were using that. Okay, now we go ahead with the text formula. Okay, uh, come the text formula, it's over here. Okay, so अभी एवरीवन जो भी अगर स्कूल में जाएंगे या कोई स्कूल के टीचर्स या समथिंग रहेंगे, उनके पास अटेंडेंस की एक लिस्ट रहती है, बराबर? तो मैंने ऐसे ही सेलिब्रिटीज के नाम लिखे हैं, बट ये सेलिब्रिटीज के नाम में थोड़ा सा आपको लाइक समथिंग डिफरेंट दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप में DONA कैपिटल में आ गया, LD स्मॉल, ट्रंप इज प्रॉपर, फर्स्ट वर्ड कैपिटल, फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी स्मॉल। लियोनेल मेसी में भी मेसी इज कंप्लीटली कैपिटल, काइली जेनर में भी K इज कैपिटल, जेनर में पूरा जेनर इज कैपिटल, Kanye West में it is YE which is capital and only S is capital. So मतलब it is not in a proper method, right? Proper format में नहीं है. So Excel understands that, and Excel has done one thing which is called as equal to proper function. Proper. If you press proper and after that you press a tab, इसके बाद I just select this thing and I press an enter. I will get the proper naming format. Understanding? सेम थिंग अगर मुझे नीचे तक कॉपी करनी है, मैं डबल क्लिक कर दूंगा, एवरीथिंग विल बी चेंज्ड इन अ प्रॉपर मेथड। तो लायनल मेसी, कान्ये वेस्ट, काइली जेनर, लेब्रॉन जेम्स, ड्वेन जॉनसन, नरेंद्र मोदी, रॉजर फेडरर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अंडरस्टैंडिंग?
दिस इज द प्रॉपर फॉर्मेट. प्रॉपर फॉर्मेट कैसे रहेगा? फर्स्ट नेम, अगर दो नेम्स लाइक देयर इज अ फुल नेम wherein there is a first name and the last name, the first letter of the first name and the first letter of the last name will be capital and others need to be small, right? That is the proper convention, and that is how Excel is trained using a particular function which is called as the proper function. Understanding? Now there is an upper formula. अपर मतलब अपर केस में जाएगा, इन द सेंस सभी चीज को एक साथ वो कैपिटल कर देगा. व्हाट डू आई डू? इक्वल टू अपर. अप भी डाल दिया, मतलब मैंने सिर्फ अप डाला तो भी ये अपर पे मेरा ब्लू सिलेक्शन आ जाता है. इफ आई प्रेस अ टैब and I select this one, it will take this, it will make a Donald Trump. Okay, then okay, just a second. Okay. Okay, if I press an upper over here and press a tab, it will make Donald Trump capital completely. Same thing मुझे replicate करनी है नीचे की तरफ भी. I have done that. लोअर में चाहिए है, इक्वल टू लोअर. लोअर में मैंने इसको भी चूज कर लिया या प्रॉपर वाले को भी चूज कर लिया, इट्स फाइन. इट विल मेक एवरीथिंग लोअर. Understanding everyone? Okay, now let me tell you, there is one fantastic usability of Excel which is called as flash fill. Okay, I'll let you know what is it. Suppose if today is my birthday party and I have invited all these celebrities for my birthday party. मैंने किसी गेस्ट लिस्ट के लिए या समथिंग बुलाया है, तो व्हाट विल आई डू? मैं क्या करूंगा, यहाँ पर बाजू में लिखूंगा डोनाल्ड ट्रम्प इज इनवाइटेड टू माय बर्थडे पार्टी, राइट? ये हो गया. अरे यार, पर मुझे तो सबके लिए लिखना है, तो मैं क्या मतलब लियोनेल मेसी इज इनवाइटेड टू माय बर्थडे पार्टी? नो, आई वोंट यूज दैट. If I have selected this thing and it knows and Excel knows that Donald Trump is actually taken from this cell, okay, though I haven't shown any referencing, but it knows कि Donald Trump is taken from this cell. मैं C2 पे जाऊंगा and there is an option in data, it is called as flash fill. झटके में fill कर देगा. Donald Trump is invited to my birthday party. वो प्रॉपर इज इनवाइटेड टू माय बर्थडे पार्टी भी हो गया. ओके, फेयर इनफ. लियोनेल मेसी इज इनवाइटेड टू माय बर्थडे पार्टी. कैन्ये वेस्ट इज इनवाइटेड. एवरीवन इज इनवाइटेड टू माय बर्थडे पार्टी. इन द सेंस व्हाट इट इज, आप एक चीज एक्सेल को एक्सप्लेन करो, इट विल ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट द थिंग विद इन सेकेंड्स. अ फास्टर मेथड फॉर द सेम थिंग इज कंट्रोल ई. अ शॉर्टकट फॉर इट इज कंट्रोल ई. आप कंट्रोल ई प्रेस कर दो, आपका पूरा आंसर वहां के वहां रेडी हो जाएगा. अंडरस्टैंडिंग? एंड ये बहुत चीजों के लिए यूजफुल रहता है. लाइक if I delete this, then I think that's deleted. Okay, okay, suppose I have written यहाँ पर, oh, yeah, suppose the first one, if I had written Donald Trump 2, Messi, any other number, or if I have taken 2, let me be a bit safe and let me take 2. Okay, सब में 2 डाल रहा हूं मैं. 2 2 2 and 2 again. ओके, इसका मतलब क्या हो गया? ये तो यार अल्फा न्यूमेरिक बन गया. तो मतलब नंबर भी है एंड अल्फाबेट्स भी है, बट एक साथ आ गए, राइट?
उसको लाइक थोड़ा सा हिचकिचाहट हो जाएगा ना कि यार ये कैसे यूज, हाउ शुड आई इनवाइट डोनाल्ड ट्रम्प टू, एंड सब में ही अगर ऐसा हो गया या समथिंग, तो व्हाट विल यू डू? इन दैट केस I can separate it within seconds. How do I do that? I'll let you know. Donald Trump 2. Okay, I'll be able to separate it. Fine. ये हो गया. इसके बाद कंट्रोल ई कर दो. सबके सबके स्पेसिंग सबके सब में स्पेसिंग्स आ गए. If you are able to take the spacings, further calculations के using further calculations, you will be able to eliminate that 2 also. Understanding? Or if I remove 2 over here, Excel is that smart that it will eliminate the 2 instantly. तो ये फ्लैश फिल बड़ी कमाल की चीज है. Everyone should know what is flash fill, because it is always helpful for anyone who is not only the person who is actually doing some data analysis or something, anyone who is actually आप जब आगे जाओगे तब आपको पता चलेगा कि देयर इज पोजीशन ऑफ डेटा क्लीनिंग आल्सो, अ पर्सन हु डज डेटा क्लीनिंग. तो एक्चुअली दिस इज फॉर डेटा क्लीनिंग. ये अनक्लीन तरीके का डेटा है, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है. बट लुक एट दिस इज अ प्रॉपर एंड अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट. ओके, तो डेटा क्लीनिंग के लिए फ्लैश फिल इज रैम्पेंटली यूज, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है. ओके, एंड just a second guys. Okay, sorry. Now let me tell you how to make a graph. ग्राफ बनाना भी बहुत इजी है, नहीं लेकिन इतना कुछ डिफिकल्ट ऐसा चीज नहीं है. तो हाउ डू वी डू दैट इज, सपोज आई टेक द डेटा ऑफ जुलाई ओनली. ओके, तो हाउ डू आई टेक द डेटा ऑफ जुलाई? सिर्फ मुझे जुलाई का डेटा चाहिए रहेगा. तो आई विल ऐड वन मोर थिंग विच इज द list format, or the label format. It's not for the list format, it's the label format. How do I add a label? I will press Control Shift and L. सभी के पास ये ड्रॉप डाउन बॉक्स आ जाएगा, सभी हेडर्स के पास ये ड्रॉप डाउन बॉक्स आ जाएगा. ओके, दिस ड्रॉप डाउन बॉक्स. व्हाट डू आई नीड टू डू? आई विल जस्ट सिलेक्ट, आई विल सबसे पहले आई विल अनसिलेक्ट एवरीथिंग. ये केस में ड्रॉप डाउन बॉक्स में आई विल अनसिलेक्ट एवरीथिंग. इफ आई वांट द डेटा ऑफ जुलाई, आई विल जस्ट सिलेक्ट जुलाई. आई विल प्रेस ओके एंड आई हैव द डेटा ऑफ जुलाई. सिर्फ जुलाई का डेटा रहेगा, बाकी किसी का भी डेटा अवेलेबल नहीं. ठीक है, व्हाट कैन आई डू इज, आई विल डू वन थिंग. सिर्फ जुलाई का डेटा मैं कॉपी करता हूँ. मैंने कंट्रोल सी किया, एक नए शीट पे चला गया एंड कंट्रोल वी कर दिया. अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? These are the total number of cases, new cases every day, right? If I have selected this and if I have pressed an insert, if I go to insert, I will always get recommended charts over here. Go to recommended charts and you have your table, you have your chart. So you can make different charts. First is a line chart, a bar chart, an area chart, or I suppose it's called a histogram. I see. Yeah, histogram chart. Understanding? तो इसके लिए ये केस में जनरली आप न्यूज़पेपर्स भी देखोगे कि आपका कुछ ग्राफ कोरोना केसेस के लिए ऐसा कुछ दिख रहा है. ओके, so this is how we make a chart. And another shortcut for it is F11. आप F11 या F12, I'm not that sure. That is I'm not telling you.
बट यू प्रेस दैट एंड यू विल गेट द चार्ट डायरेक्टली, आपको recommended चार्ट इमीडिएटली मिल जाएगा. ओके, एंड इसमें थोड़े चेंजेस आपको करने हैं, ये चार्ट टाइटल बदलना है या समथिंग, व्हाट विल आई डू, ये इसमें आई वांट न्यू COVID-19 केस. 19 केसेस. अभी इसकी एक खास बात बताता हूँ तुम्हें. जस्ट चेक दिस थिंग आउट गाइस. The data through which it is making this chart is available over here, right? If I change the data over here, if I alter the data, if I do a 0 over here and I press an enter, it automatically changes the data point over here also. That means it is dynamic in nature. मतलब क्या है, जैसे आप यहाँ पर कुछ उथल पुथल करोगे, वो उथल पुथल यहाँ पर अवेलेबल रहेगी, वो चेंज आपको यहाँ पर विजिबल रहेगी. अंडरस्टैंडिंग? कंट्रोल जेड कर दिया, आपका ग्राफ वापस वैसे का वैसा आ गया. अंडरस्टैंडिंग? एंड ये इसमें you can definitely do some changes or some styles if you want to improve. कुछ एक्सेस टाइटल्स है, डेटा टेबल्स बनाना है या डेटा लेबल दिखाना है, लेजेंड बताना है, क्या क्या बता रहा है, ये सीरीज ए है, दिस इज व्हाट आई विल एंटर COVID-1 केस, COVID-19 केस. ओके, सो दीज आर द टोटल COVID-19 केसेस एंड ऑल. इसका एनालिसिस करने के लिए ये बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा. इसके ऊपर वाला है पिवट चार्ट. वो पिवट चार्ट के लिए आई डोंट थिंक सो वी हैव द राइट टाइम, because pivot chart will itself take minimum 2 hours to study. Each and every like this thing, if you go to insert a page layout, formulae, data, each and everything over here will have a minimum 2 hour session for understanding the nitty gritties of it. Because of the lack of paucity of time, I feel today it is not even half percent of what Excel provides you. And generally for calculation purpose, people use Excel, but they don't use Excel in the right way. So yeah, that with that I come to the end of the session also. The only thing which I like to tell you is many of the people know how to use Excel. Like they are aware there is something called as Excel, but they actually don't know how to use Excel. That is what I'm trying to say. In the sense, I had heard someone say that if Excel is an aeroplane, if Excel is an aeroplane, people are using it as a bicycle. Okay, and he'll be much more happy. That person will be much more happy even if the person uses it as a bicycle. But people are using that bicycle by carrying it on their shoulder and walking. So that is the level of rudimentary people are using it with. People are not aware of its capabilities, and if you go on reading about it or go on exploring individual formula, individual columns, or individual what do we say, ribbon elements or something, you will definitely be able to explore much more with this. And with that I come with to the end of the session. And does anyone have any doubt with respect to the session today? I will be happy to take all the questions. You can put it on your chat box and Yeah. Karthik will answer your questions. Yeah, just a second. So there were many questions, by the way. Okay, so right, Dolly is asking, does tab create a bracket and tab is on keyboard? Yes, tab is actually on the keyboard. Tab मतलब आपका जो caps lock के ऊपर वाला बटन है ना, कंट्रोल शिफ्ट कैप्स लॉक एंड ऊपर टैब करके बटन रहता है. टैब इज एक्चुअली सिलेक्टिंग अ पर्टिकुलर फॉर्मूला और अ फंक्शन, उसके लिए हम टैब यूज करते हैं. Okay, data validation, वो data validation is into like it's deep, so it's
बेटर वी वोंट टॉक अबाउट इट बिकॉज 15-20 मिनट्स उसी में चला गया डेटा वैलिडेट करने के लिए समथिंग. यस. Okay, Nikita says that she has done computers, but it is too complicated. Nikita, I would suggest that once you try Excel, if you get a hands-on experience, definitely आपको easy लगेगा. देखने में swimming बहुत difficult लगता है. जब आप actually try करोगे, after a particular time, आपको वो easily आ जाएगा. It's just the same. Okay. Someone has shared the screen, Nancy. Yeah, thank you. Rohan has asked, we can insert graph or chart in insert tab, right? Yes, exactly. So that was what I had told. कि insert tab में चले जाओ and you can insert the graph or chart from there also. Okay. Also one more thing, if you want to make your own table, I'll let you know that also. वो भी insert table insert में available है. Okay. Suppose I want to insert a table or make a new table altogether. Okay. So what will I do is go to insert. Are you able to see the screen? Yeah. So first सब insert पे चले जाओ. Insert पे table करके रहेगा ऑप्शन. आप टेबल सिलेक्ट कर लो. ओके, वेयर डू यू वांट द टेबल, आपको कहाँ पे चाहिए है टेबल. तो मैं सिलेक्ट कर लूंगा एरिया, मुझे हाँ ऐसा कुछ, हाँ इतना बड़ा टेबल चाहिए है. ओके, एंड माय टेबल हैज हेडर्स ऐसा लिख लो, एंटर कर लो, आपका पूरा का पूरा टेबल बन जाएगा. अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? yes. And yeah, when we go on to that this thing, control shift L कर देता हूँ इसको. एंड ये कोविड केसेस वाला जो ग्रिड था, ओके ये ग्रिड जो था उसमें आर यू एबल टू सी सम बॉर्डर लाइन. बाकी के इसमें देखो यू डोंट हैव दैट बॉर्डर लाइन, बट ओवर हियर you have a darker border line. How do you do that? I'll let you know. You can select the entire grid with control shift left right, left down, yeah right down, sorry, I'll show it to you again. Control shift right down. Okay, so this is a shortcut to select the entire grid. If you have done that, go on to home. यहाँ पे फॉन्ट में बोल्ड है, अंडरलाइंड है, इटैलिक्स है, इसके बाजू में ग्रिड सॉर्ट ऑफ है. आई यू एबल टू सी? दिस इज द बॉर्डर थिंग. यहाँ पर चले जाओ, ऑल बॉर्डर्स कर लो, यू विल गेट ऑल बॉर्डर्स. कंट्रोल शिफ्ट दिस. If you select all this together, and if you don't want borders, go to no borders. Simple as that. You won't have any borders. Okay. So these are the actual what do we say, capabilities available over here. Also, yeah, one more last thing I'd like to share with you is, suppose I am writing addition over here again, and I want to make a similar table down also. All I can do is first thing is directly select copy and paste कर लो, control C control V, right? Or what can I do is, सबसे पहले मैं addition लिख दूंगा. ओके, ये ऐसा आ गया. subtraction लिख दूंगा, ऐसा आ गया. multiplication लिख दूंगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा. नहीं आ रहा रहेगा, नहीं आ रहा रहेगा, या फिर अरे यार मुझे ये ऑरेंज चाहिए नहीं था, मुझे तो ग्रीन चाहिए था. व्हाट विल आई डू? आई विल सिलेक्ट द ग्रीन वन. इफ आई हैव सिलेक्टेड द ग्रीन वन, देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड एज फॉर्मेट पेंटर. देखो यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर करके है. अंडरस्टैंडिंग? क्लिक ऑन फॉर्मेट पेंटर, एंड ये फॉर्मेट कहाँ पे चाहिए है आपको? आपको एडिशन में फॉर्मेट चाहिए है, सेम फॉर्मेट आपको मिल जाएगा. वापस फॉर्मेट पेंटर पे चले जाओ. मुझे एडिशन के साथ सब्ट्रैक्शन भी चाहिए था, दोनों एक साथ करने थे, मैं ये कर लूंगा, दोनों से. अंडरस्टैंडिंग? ऑल्सो वन थिंग इज, या मेरा अभी ये पूरा काम, पूरा सेशन हो गया, सब हो गया. आई वॉन्ट टू डिलीट एवरीथिंग. व्हाट आई कैन डू इज कंट्रोल A
एंड डिलीट, सब डिलीट हो जाएगा. ओके, और there is another method to do it. Control Z. If I, there is an option, there is a triangle, small triangle over here. Are you able to see? सभी को ये ट्रायंगल दिख रहा है? ये ट्रायंगल पे क्लिक करो, पूरा पूरा शीट तुम्हारा सिलेक्ट हो जाता है. इसको डिलीट कर लो. एंड ये पूरा शीट ही एलिमिनेट करना है. देयर इज अ फॉर्मूला फॉर दैट. ऑल्ट ई एल. पूरा पूरा का पूरा ही ये हो जाएगा, बंद हो जाएगा वो. अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? लेट मी गो ऑन टू द चैट नाउ because I suppose conditional formatting in style group. Okay, conditional formatting is generally used for like if I tell you, okay, so suppose आपके स्कूल ने आपका मार्कशीट्स बनाया, सबका मार्कशीट बना लिया, मतलब एक ही इसमें मार्कशीट बनाया है, सबके मार्क्स एक ही पेपर पे लिखे हैं. So suppose there are 10 students. Can anyone just switch off their share screen? Whoever has done that. Yeah, thank you. So whenever you write the marks, suppose I'm able to see Tejas Ingle over here, and AJ Nishad and Babita Kumari. If there are 3 students like this, okay, their scores are, suppose if I say 20 marks out of 100, 70 marks out of 100 and 90 marks out of 100. Okay, and I want to show, ये तो 3 ही लोग हैं, ऐसे 300 लोग रहेंगे, 3 लाख लोग रहेंगे. Okay, in that case I want to show that some person who has scored less than 35 is failed. वो कैसे दिखाऊंगा? तो वो केस में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करेंगे. ओके, सो दैट जब भी आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करोगे, 35 के नीचे रहेगा तो वो रेड कलर का एक पॉपअप दे देगा, लाइक तुम्हारे सेल को रेड कलर कर देगा. तो वो उसमें लाइक इन दैट केस यू विल हैव टू डू सम changes. You'll have to set it properly, set the conditional formatting, and you have to select जो डेटा आपको यूज करना है. जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे, if it is less than 35, it will change the color of that cell to red. तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हाँ, this person has failed, or it will change the color to green. हाँ, this person has passed. So this is how we use conditional formatting. Like that is one example. Conditional formatting is for any particular condition. आपको कोई condition के हिसाब से अगर format change करना रहेगा आपके cell का, then we are using conditional formatting. How do we apply formula on whole Excel sheet? That's a nice question. So if I want to apply a formula on the whole thing, I will just select any like suppose I use one cell to enter one data point, and I want it to be displayed on each and every cell of the spreadsheet. What will I do is, suppose I put 1 in the A1 A1 cell. Okay, I will select कंट्रोल शिफ्ट दबा के राइट एंड डाउन कर दूंगा, पूरा शीट सिलेक्ट हो जाएगा. एंड वहां पर मैं डबल क्लिक कर दूंगा दैट स्मॉल प्लस साइन टू द राइट कॉलम, राइट लोअर साइड कॉलम, राइट लोअर साइड ऑफ द सेल. With that we'll be able to select the entire spreadsheet, and we'll be able to paste the data point on each and every cell. Hello. Yeah. अपर की मीन्स अपर एरो की, एब्सोल्युटली नेविगेशन की, ऊपर जाने वाला. Hello. Yeah, ma'am, you are audible. Yes, ma'am, you are audible. Go ahead, Karthik. I'll go ahead. Okay, so there's one last question I feel Komal Kushwaha ने पूछा है कि can you explain in short the arithmetic function on Excel sheet?
अरिथमेटिक फंक्शन ऑन एक्सेल शीट मैंने वही बताया ना तुम्हें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो सम अगर चाहिए रहेगा या समथिंग, तो फर्स्ट आई डू 1 2 और 3। ओके, what will I do? Equal to sum tab, I will select all the data points, enter कर दो, मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, yes aunty, with this I come to the end of the session. Thank you, Karthik, for this excellent session. And I think all of them would have understood it. This is the basics, just the basics, like how he said. There are much more, and you can try on your own because the basics have already been taught. And as usual, we will be sharing the test link with you, and all of you can click on the link and give your test. Thank you all, everyone. Thank you, Karthik. Thank Thanks you a Lata lot. ma'am. Yeah, and with Yes, this, I formally end this class. Thank you.